امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، دلہن بن کے چلی گئی، اگلا صبح کا وقت آیا، ساس صاحبہ نے دروازہ بجا دیا اور دروازہ بجا کے کہنے لگی بہو باہر آ جا، اور محلے والیاں تجھے دیکھنے آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں تو اپنے لڑکے کے لیے کیسی بہو لے کے آئی ہے؟ اندر سے کوئی آواز نہ آئی، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کہا، اور یوں سوچ کی کیا سمجھا ہوگا کیا پتا نماز نہیں پڑھی، یوں سمجھا ہوگا کیا پتا پہلی رات ہے سو رہی ہوگی۔ دوسری مرتبہ کہا اے بہو ہے میری نو، تو نے سنا نہیں محلے والیاں میری بہو دیکھنے کے لیے آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں باہر آ جا۔ اب کہہ رہی اماں یہ تیرا حکم ہے یا تیرا مشورہ؟ انہوں نے کہا بیٹی میں تو جٹکی سی عورت ہوں، مجھے حکم اور مشورے کا پتہ کوئی نہیں۔ کا مشورہ وہ ہوتا ہے، مشورہ دو مانو یا مانو، یہ میرے عزیز و اختیار میں ہوتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ اماں بڑوں کا حکم جائز ہو تو ماننا پڑتا ہے۔ کہ پھر حکم ہی سمجھ لے اور مشورہ سمجھے تو کیا ہوگا؟ کہ پھر اماں اگر حکم ہے تو آ جا، آج باپ کی قسم توڑ دوں گی، اگر تیرا مشورہ اماں جان میں باہر نہیں آؤں گی، بیٹی تیرے منہ پہ چھالا پڑ گیا یا کوئی چہرہ زخمی ہو گیا یا تیرا چہرہ قابل مذمت ہے کسی کو دکھانے کے قابل نہیں، کہ اماں جان نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، رب اکبر کی قسم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے میرے چہرے پر کسی بے نمازی عورت کی نگاہ پڑنے نہیں دی ہے۔ اب آپ بتاؤ اندر رہو کہ باہر آ جاؤ؟ 70 کے قریب عورتیں باہر کھڑی تھی، داڑے مار مار کے چیخے مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی احمد بن حنبل کی بیٹی اپنے باپ کا دیا ہوا پردہ برقرار رکھ، جب تک ہم نماز کا سجدہ نہیں کریں گی تیرے بوئے پہ تیرا چہرہ دیکھنے نہیں آئیں گی۔ دنیا جن کے پاس تھی، مال جن کے پاس تھا، دنیا کمانے والوں کے بیٹے باغی بنتے، چلو ایک تو سمجھ آتی کہ پیسے نے ان کو پھیر کے رکھ دیا۔ دینداروں کو کیا ہوا؟ دینداروں کے بیٹے بھی اللہ کے دین کے باغی بن گئے۔ مجھے تمہارے آمد و سیال کا پتہ کوئی نہیں، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم تو دن میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ پورا پاکستان 8 دن کے اندر گھوم کے آ جاتے ہیں۔ اتنی شرم آتی ہے، 40 سال بچوں کو قرآن پڑھانے والے کا بیٹا ہی داڑھی چہرے پر رکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ وقت کا شیخ الحدیث ہو، بیٹا داڑھی مونڈ ہے، اس کے لباس کو دیکھو میرے محترم دوستو، شلوار ٹکنوں سے نیچے نظر آ رہی ہے، کالر والا لباس پہن رکھا ہے اور یوں کر کے اس نے بال اپنے منہ پہ گرا رکھے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، یہ لاکھوں روپے کا جو انتظام ہے، اتنا خرچہ کیا میرے محترم دوستوں بزرگوں، کوئی ڈیکوریشن نہیں، کوئی دکھانا نہیں، جتلانا نہیں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آنے والے یہاں آئیں گے، اپنی دل کی کھیتی کو آباد کریں گے، ایمان کی ترقی ملے گی، اللہ اس کے رسول کی محبت کو لے کے جائیں گے۔ ہم خرچہ کریں گے آپ سے لے دے کر، آپ پر خرچہ کریں گے، ہمارا اتنے کے اندر آپ کا اور ہمارا کام بن جائے گا۔ اتنا سا بچہ آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا، میرا عزیز و مدرسہ شمسیہ میں کیا تھا، اللہ اکبر، میرا عزیز و اتنا سا بچہ آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا، ناک بیری تھی، پجامہ اس کا سیدھا نہیں تھا، پاؤں کا جوتا جو آپ نے خرید کے دیا تھا الٹا پہن کے آ گیا تھا، باتھ روم میں جا کے استنجا اور شلوار چرانے کا پتہ کوئی نہیں تھا۔ آپ نے میرے عزیزوں جب مدرسے کے اندر آیا آپ نے سب سے پہلے فرمایا NOC حافظ بنانا ہے، اس کے علاوہ تو آپ نے کوئی بات نہ کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ حافظ قرآن بننے میں اس کے اندر کیا کیا صلاحیت ہونا چاہیے، ادب اس کے اندر ہونا چاہیے، سچائی اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کی آنکھ کے اندر حیا ہونی چاہیے، اخلاق کردار کا پکا ہونا چاہیے، اپنے بول کا تقوی طہارت کا 5 وقت کا نمازی پکا ہونا چاہیے۔ آپ نے تو صرف حافظ مانگا تھا، ہم نے اتنے نور کے اندر یہ گلدستہ سجا کر تب تمہارے حوالے کیا۔ ہم نے کہا دیکھنا جو آپ نے ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی، ہم نے دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں اس ذمہ داری پر محنت کر کے نتیجہ تمہارے سامنے کر دیا۔ کوشش کرنا اس گلشن کو اللہ اکبر بد امنی کی، بے حیائی کی، حرام مال کی ہوا نہ لگنے دینا، ورنہ 4 مہینے نہیں 1 مہینے کی بات ہے، اگر بے حیائی کا ہاتھ، بدگمانی کا ہاتھ، بد امنی کا ہاتھ، بد اخلاقی کا ہاتھ اگر آپ کی میری نسل کو لگا تو اللہ کی عزت کی قسم قرآن کا نور جانے میں دیر نہیں کرے گا۔ اکثر حضرت شاہ صاحب کے پاس آتے ہوں گے، مولا صاحب، شاہ جی ہاتھ پھیرو، ہاں شاہ جی
सलवात चा पढ़ो, दुआ चा करो, घरे जाके नमाज कहीं नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर। शाह साहब कहते नहीं मैं डांटूंगा, डंडा मारूंगा, मैं इसको समझाऊंगा। वो कैसे आपको कहे जो थोड़ी बहुत दीन के साथ रिश्तेदारी वो भी खत्म हो जाएगी। शाह साहब कहते मियाँ 2 महीने यहाँ पढ़ा, अल्लाह की कसम तकबीर उला फौत नहीं हुई। तहज्जुद की नमाज में उठता था, रात को 11 बजे 12 बजे सोया करता, सुबह फिर उठ के तहज्जुद में कुरान की तिलावत किया करता था, सुबह से लेकर शाम तक नमाजों के सजदे करता। क्योंकि इसको खाना नमाजी हाथ का मिला, आटा भी नमाजी हाथ का मिला, इसको दस्तरखान भी मिला। मेरे अजीज वो खिलाने वाले भी नमाजी, पकाने वाले भी नमाजी, और खुद भी 5 वक्त का नमाजी था। अल्लाह अकबर। इतनी पाकीज़गियों का नूर इसके अंदर गया, नमाज दौड़ती उसके पास आ गई, कुरान ईमान दौड़ता हुआ इसके पास आ गया। लेकिन ये एक छुट्टी के लिए जुमेरात को गया, हफ्ते को सुबह आया, इसने ना घर के अंदर ईमान का, कुरान का, नमाज का नूर ना देखा। माँ बे नमाजी, अब्बा बे नमाजी, इन्हें इतना भी ख्याल ना आया मेरे 4 बच्चे मदरसे में पढ़े, कम से कम मैं नमाज पढ़ लो। अल्लाह अकबर। जो कुरान मार खा खा कर घर के अंदर पढ़ के, घर में पढ़ के गया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कुरान अलमारी में पड़ा हुआ, घर के 10 अफराद में से हाथ नहीं लगाया। ये ऐसा मेरे अजीजों बेहयाई का, ये ऐसा बेनूरी का झटका था, खुदा की कसम एक दिन के अंदर बच्चे का अंदाज ही बदल गया। पता है कुरान का हाफिज हो, पता है कुरान का हाफिज हो, पता है कुरान का ये अलहदा मैटर है, ये अमल करता ये नहीं करता। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अलमारियों के अंदर कुरान पाक पड़ा हुआ है, उस पर जुज़दान चढ़ा हुआ है। जुज़दान मेरा अजीजों गिलाफ 10 साल 15 साल 20 साल के बाद पुराना हो जाए तो मेरे अजीजों कसम उठा के बताओ, उसे कचरे के ढेर में डालते हो? कचरे में डालोगे? उसको जलाओगे? परे फेंक दोगे? उसके अंदर जूते रखोगे? कहां रखोगे? बेशक वो गिलाफ पुराना हो गया और उसके साथ का नया गिलाफ आ गया, जुज़दान आ गया, लेकिन पुराना वो सीधा फटा हुआ तनी फटी हो जाए, गिर लगी हो, उसे भी मेरे दोस्तों आप कुरान पाक के साथ रखोगे, गो कि वो अब गिलाफ नहीं, लेकिन है तो उसका गिलाफ रहा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से फरमाएंगे ठीक है तू कुरान के उसूलों पे अमल करके ना आया, लेकिन तेरे कुरान वाली, तेरे सीने वाली खिड़की में थोड़ी देर तो मेरा कुरान रहा था, अब ये तेरी बात है, तूने अमल किया ना किया, तो क्या समझा जिस सीने में मैं कुरान रखूं उसे मैं जहन्नम में जलाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो कपड़े का जुज़दान बनाए उसे आग नहीं लगाता, मैं तेरे सीने में कुरान रख के कहा कैसे लगाऊंगा? मैं गुनाह किए, माफ करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं माफ करूं ना करूं मुझे पूछने वाला कोई नहीं। हाँ तेरे सीने से कुरान की खुशबू आ रही है, गुनाह अलहदा है, जा इसी की बरकत से मैंने तेरे आज सारे गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नतुल फिरदौस के दरवाजों से तुझे दाखिल कर दिया। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, लोगों का सीजन शुरू होगा, ये ना हो कि 30 रोजों इस सीजन के अंदर रोजे भी चले जाए, ये ना हो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों तरावी भी चली जाए। कोशिश करना, रमजान मेरा अजीजों अल्लाह का महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है, रमजान मेहमान है और रोजा रखने वाला अल्लाह का मेहमान है। हजरत शाह साहब के पास कोई मेहमान आए, शाह साहब के तालिब इल्मों से, वो यहाँ बैठे थे, कहाँ चले गए? कह रहे बाजार गया, मैं भी आ रहा हूँ। शाह साहब ने पूछा, दाएं बाएं पूछा, थोड़ी देर में खुद चलते हुए आ गए और उनके हाथ के अंदर एक थैला था। सबसे पहले शाह साहब ने पूछा कहाँ गए थे? उनका ये बस बाजार गया था। क्या लेके आए? ये लेके आया। अच्छा कितने का लेके आए? दिखाओ तो सही। जब दिखाया, शाह साहब ने मेरा अजीजों प्लास्टिक पर और शॉपर के ऊपर नाम पढ़ा और कहा उसकी दुकान से लाए। मेरा नाम लेते हैं, उन्होंने कहा बस कोई बात नहीं, आप मेरा नाम लेते हैं इंशाअल्लाह आधी कीमत में आपको देता, वो हमारी हया करता है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, फिर शाह साहब ने पूछा कितने का आया? इतने का। शाह साहब ने कपड़े दे के भेजा ना, उसको कहो मेरा मेहमान है, इतने का क्यों दिया? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मेहमान का हया दुकानदार कर जाता है। रमजान का महीना आएगा, चावल वाला, सेब वाला, मेरे अजीजों किन्नू वाला, प्याज टमाटर वाला, वो आपकी दुकान के ऊपर आके खड़ा होगा और कहेगा ये चीज कितने की है? आप कहेंगे इतने की। आप कहेंगे नहीं यार तेरी मेहरबानी सस्ता कर ले, मेरे बच्चों ने इफ्तारी करनी है, आज मेरे बच्चों ने रोजा रखा है। फरमाया तेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर आवे और तेरे दरमियान मेहमान के साथ कोई दगा करे, तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जब मेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर आवे तू दगा करे तो मैं अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता। कोशिश करना खजूर का दाना साफ साफ देना। सारा बाजार में फिरकर खजूरें छान के लेके गया
और उसे कहा जरा ऊपर वाले फ्रिज में रख दे, गर्मी बड़ी है, ठंडी करके खाऊंगा। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु बिका आमनतु पढ़ के यूं खजूर का दाना खोला और उसके अंदर से कीड़ा नजर आया। कहने लगा जा तेरा बेड़ा गर्क ही हो जाए बाबू, उसका तो गुजारा हो जाएगा। रब्बे अकबर की कसम जहन्नम के दरवाजे तक ये ना छोड़ दे, ये बेड़ा गर्क लफ्ज़ तेरा साथ ही नहीं छोड़ेगा। रमजानुल मुबारक का महीना कारोबार का सीजन नहीं, रमजानुल मुबारक का महीना नेकियों का सीजन है। कोशिश करना मेरे लाडलो, कोशिश करना मेरे प्यारो, खुदा की मखलूक को उतना धोखा देना जितना क़यामत की शर्मिंदगी और कब्र के अंधेरे की वहशत बर्दाश्त कर सको। अल्लाह की कसम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जितनी मखलूक बैठी है सारा अल्लाह का कुनबा है। तो मुझे मेरे बच्चों को गाली दे, मेरे कुनबे पर उंगली उठाए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जो अल्लाह के मखलूक पर कोई मेरे अजीज़ हरफ उठाए, अल्लाह के कुनबे पर अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता। कोशिश करना कपड़े वालों तुम भी ख्याल करना, जूते वालों तुम भी ख्याल करना। रेक्सेल का जूता बाटा की मोर, बाटा दा, तुझे पता नहीं तू मालिक है, 2 करोड़ का तूने दुकान के अंदर माल डलवाया, 10 तेरे मुलाजिम है, वो इस मोर से धोखा खा के बाटा का जूता लेके चला गया, तुझे पता ही ना चला। तीनों सिर्फ थैले के अंदर जूता ना दिया बल्कि 12 अफराद का रोजा ही तूने दे दिया। यूं करके कपड़े का थान फेंकोगे, जिस पे दाग होगा, जिस पे मलमल होगी, एक ही और कुछ भी नहीं, लो पानी साफ हो जाएगा। तेरे कहने पर, तेरी दाढ़ी पर, तेरे तकवे पर, तेरे माथे के निशान पर, तेरे हाथ की तस्बीह पर, तेरे दुकान के दरवाजे पे लिखा था आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा। ये तो इन चीजों को खा के धोखा खा के चला गया। इसने ईद के दिन देखा 4 मरतबा भी कपड़ा धोया, वो दाग न धुला। कहे अल्लाह देख ये ड्रामेबाजी की वो मौली साहब ने, अल्लाह वो हाजी साहब ने, हाजी हट्टी वाले ने, मक्का कलात वालों ने वो धोखा किया। अल्लाह फरमाने तुझे तो धोखा दिया, मुझे धोखा ना दिया। कयामत के दिन आएगा मैं ऐसा धोखा दूंगा दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। ये क्या समझता अपने आप को? बात कपड़े की आई, मेरे लाडलो मेरे प्यारो, जितने बैठे हो सारे बाल बच्चेदार हो, किसी के नन्हे नन्हे बेबी बच्चा हैं, किसी के छोटे बड़े हैं। मेरे अजीजों ये सिलेक्शन आपने करनी है, खबरदार अपने बच्चों से सिलेक्शन ना कराना। और इस सिलेक्शन को मेरे अजीजों खुदा के वास्ते मोबाइल से ना करना। अहमदपुर सियाल के अंदर मेरे अजीजों 5 वक्त के नमाजी को भी अहमदपुर सियाल के अंदर बच्चों के कपड़े नहीं पसंद आएंगे। वो जंग जाएगा या मुल्तान के अंदर चला जाएगा और उस दुकान पे चढ़ेगा जो सबसे ज्यादा बेहूदा नजर आएगी, सबसे ज्यादा बदतमीज नजर आएगी, लिबास के अंदर सबसे ज्यादा बेहया नजर आएगी। घर के अंदर किलकिल है मेरे अजीजों, चक चक बकबक, मैं माशरत पे बोल रहा हूँ, घर के अंदर किलकिल है, चक चक बकबक है। अब बीवी अफ्तारी भी दे रही है, सालन भी दे रही है, हंडिया पर जोर से चमचा, तेरे पुराने कपड़े ले ले, तेरी भाभी ने ले ले, नाल वाले पड़ोसी ले ले, असी तो यतीम हाँ, साढ़े कपड़े पता नहीं कौन पाएंगे। इतना तंग किया कि अफ्तारी करना मुश्किल हो गया। चलो सारे मगरिब की नमाज के बाद मेरे अजीजों कपड़े लेने के लिए चले गए। सोती बच्ची को भी कंधे से उठा लगा लिया। जब उस दुकान के ऊपर पहुंचे सबने अपने अपने कपड़े पसंद कर लिए। छोटी बच्ची ए दावी को सोना जब खा दे, अल्लाह होगा तेरी नजर में जिस आंखों ने अल्लाह का दीदार करना है, जिन आंखों ने सारे नबियों के सरदार का दीदार करना है, वो कह रहा सोना जा दिखा दे। उसे फातिमा का लिबास पसंद नहीं आएगा, उसे अम्मा आयशा की चादर पसंद नहीं आएगी, उसे अम्मा खदीजा का पर्दा पसंद नहीं आएगा, उसे अम्मा हव्वा की मेरे अजीजों उसे हया पसंद नहीं आएगी, अम्मा सारा का तकवा पसंद नहीं आएगा, हाय 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 उम्मे सलमा के रातों के सजदे पसंद नहीं आएंगे। ओ वखा उसने यूं खूंटी से किल्ली से कपड़ा उतारा तो कहने लगा हाँ ए को जचदा है, ए जचदा है। बीवी को सोना है, वो भी बुरके में करी हाँ सोना है। दुकानदार भी करी हाँ ए दुकान दी जान है, तो सबसे बेहतर फीस है, फ्रेश फीस है, इसे तो दुकान के हमने बाहर लगा रखा है। अल्लाह अकबर, वो लिबास तुझे पसंद आया जिसके बाजू कोई नहीं, जिसके पजामे के कपड़े कोई नहीं, किधर ले लेना है, ए मुन्नी ले लेना है, ए बेबी ले लेना है, नाम आयशा दे ले लेना है, नाम अक्सा के लिए लेना है, नाम फातिमा के लिए लेना है, नाम कनीज सकीना के लिए लेना है। वो लिबास छोटी बच्ची के जिस्म पर जब यूं करके लगाया तो उसने यूं करके अंगड़ाई ली और अपने बाप को देखा, अब्बा तू तो LLB था, बड़ा लिखा था, बैरिस्टर था, अनएजुकेटेड नहीं, बड़ा तालीम याफ्ता था, तू मेरे लिए ये फैसला कर रहा है? जिसने मेरी गैरत को बचाना था ये मेरी गैरत का सौदा कर रहा है।
दुकान का मुलाजिम कह रहा है नहीं 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 मैं लगा के देखता हूँ। यूं कमर के लगाया, ऐसा लगा जैसे कोई जहरीली चीज ने काट दिया हो। ये बाप के ऊपर चढ़ती गई, रोती गई, चूसनी गई, फीडर गई, खिलौना स्लेंटी कहीं चली गई। इतना रोई, दुकान से बाहर आके सांस लिया और अपने बाप को देख के हिचकियां ले लेके कह रही थी, अब्बू जी अल्लाह के वास्ते इसकी मुझे पहचान ना करवा। सीना इसका खुला हुआ, कमर इसकी खुली हुई, बाजू इसके है कोई नहीं, शलवार का कपड़ा इसका है कोई नहीं। मेरा अब्बू मैं तुझे रो ही सकती हूँ। मैं हिचकियों से कह रही हूँ अब्बू जान मुझे इसकी पहचान ना करा। आज ये लिबास अब्बा 6 महीने की उम्र में तू मुझे पहना रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये लिबास मुझे पसंद आ गया 18 साल की उम्र में जब मैं पहन के आऊंगी, अहमदपुर सियाल में तेरी गैरत का जनाजा ही निकाल के रख दूंगी। ना पहचान कराओ, ये आपने करवाई। उसे क्या पता था आप उसके ऊपर चादर डालते, वो ना कर दी। अल्लाह की कसम शाह जी आपके घर में, हमारे घर में ऐसी बेटियां आपके घर भी में मौजूद है, वो गर्मी के अंदर भी सर से दुपट्टा नहीं उतारती। लेकिन अल्लाह की कसम कईयों की इबादत काम नहीं आएगी, कई पर्दादारों का दुपट्टा ही उन्हें कामयाबी की क़यामत के दिन कामयाबी दिलवा देगा। आज आपकी मेरी बच्चियां हम सब मुलव्विस हैं जब इतना बड़ा गला खोलकर शलवार यूं पजामे को पिल्लियों तक लाकर इतनी इतनी बाजू तक लिबास कर फिर कहते हैं मां इन्हों समझा दुपट्टा नहीं लंदी, चल कुत्ते खबरदार। तो मुझे दुपट्टे की पहचान कराएगा। अपने मोबाइल के कवर को देख, पूरी दुनिया का गन तो तेरे मोबाइल के पीछे लगा हुआ, तो मुझे दुपट्टे की पहचान करवाएगा। खुदा के वास्ते अगर तू गैरत वाला होता तो ऐसी बेहया तस्वीरें अपने मोबाइल में लगाता। तो समझा घर के अंदर कंजरियां हैं, कंजरी नहीं घर के अंदर बच्चियां थी। कंजरों का रूप मेरे भाई तूने दिया, तुझे शर्म नहीं आई? रात को 4-4 बजे हो उम्मत के नौजवानों, तुम चाहते हो कि बेटी अहमदपुर सियाल की सबसे गैरतमंद बेटी बने, तो खुदा के वास्ते रातों को ये मोबाइल छोड़ो, मुसल्ले पे खुदा को रो के दिखाओ। तुम्हारी बहनों का आंसू खुदा की कसम कयामत के दिन तेरी मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएगा। वाईफाई जब से घर में लगी, वाईफाई नहीं बेहयाई थी। दो हजार रुपए का मेरे समेत सारे पैकेज कराते हैं। बाप खांस खांस के थक गया, मां खांस खांस के थक गई, दवाई के इसके पास पैसे नहीं। रात को इसे दिल के, ये बदबख्त नहीं तो क्या, इसे दिल के उजाले में अल्लाह का घर नजर नहीं आता, रात के अंधेरे में पैकेज वाला नजर आ जाता है। बाबूजी मैं दुनिया फिरता हूं, अभी भी एक मुल्क में जा रहा हूं, यकीन जानो मौलाना, अल्लाह अकबर। यहां से मैं जोनसबर्ग गया, जोनसबर्ग से मैं डरबन गया। एक ही दिन जुमेरात को यहां से हम सवार हुए, पहले अबू धाबी पहुंचे, अबू धाबी से मेरे अजीजों जोनसबर्ग पहुंचे, वहां से 1.5 घंटे की फ्लाइट से हम डरबन पहुंचे, जुमा पढ़ाया। शाम को एक मस्जिद के अंदर दर्स था। जब मौलवी साहब मस्जिद के अंदर एंट्री हुई तो 3-4 लंबे लंबे मेज पड़े हुए थे और उन मेज़ों के ऊपर जूते नहीं थे, टोकन जूतों के नहीं थे, टोपियां नहीं रखी हुई थी। आईफोन, सैमसंग बड़े बड़े 4-4, 5-5 लाख के सैकड़ों मोबाइल रखे हुए थे। मैंने कहा भाई ये क्या है, यहाँ मोबाइल बिकते हैं कि मस्जिद के अंदर नॉट अलाउड, मस्जिद के अंदर मोबाइल नहीं जाता। तो मैंने कहा क्यों? कहा मोहल्ला मस्जिद है, करीब नहीं, घर बहुत दूर दूर है, 15-16, 20-20 किलोमीटर हैं, इसलिए लोग कहाँ घर मोबाइल रख के आए, दफ्तर से ऑफिस से आते मोबाइल मेज पे रख के चले जाते हैं। मैंने कहा मियाँ बता तो सही, अल्लाह अकबर, यहाँ मोबाइल रद्दो बदल तो नहीं होता? का मौलाना अल्लाह की कसम जब से हम नमाज पढ़ने के लिए आए कभी हमने मस्जिद के अंदर मोबाइल की घंटी ही नहीं सुनी है। मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरे पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई, कलमा पढ़ने वाले नबी के नमाजियों को किसकी नज़र लग गई? या 5 लाख रुपए का मोबाइल गुम नहीं होता, वह 200 रुपए का जूता ही नहीं मिलता है। नहीं यकीन आता अभी मेरे अजीजों, जलसा खत्म होगा देख लेना, कोई करार बैठा हुआ, कोई हिंदू बैठा हुआ, कोई सिख बैठा हुआ, क्या यहूदी बैठे हुए, ईसाई बैठे हुए, सबने कलमा पढ़ा, सारे पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनने सलसा नबी का है, सीरत मुस्तफा, शान साहबा सुन के आए, नतीजा ये निकला के बाद में जूते ही गायब हो गए। हंसना मना है मेरी तकरीर के अंदर, अल्लाह की तरफ ताल्लुक बनाओ, रुजू अल्लाह से करो। कई मदरसों की कारगुजारी, खुदाए पाक की कसम, खैरात का खाना खिलाने वाली वो तसलियां गायब, पानी के गिलास गायब, लोगों की सैकड़ों मोटरसाइकिल, क्या थूकता होगा पूरी दुनिया का कुफर। कितनी खामोश मेहनत थी। और लोगों चोर हमारे घर में आया,
न शोर शराबा किया, न ताला तोड़ा, न कुंडे तोड़े, सोना छोड़ के चला गया। और मेरे मोहतरम दोस्तों, चांदी छोड़ के चला गया, डॉलर के अंदर, पाउंड के अंदर करेंसी छोड़ के चला गया, लेकिन हाय आपकी मेरी गैरत को ले के ही चला गया, आपकी मेरी हया को लूट के चला गया, आपकी मेरे रातों के सजदे लेके चला गया। आज जिम्मेदारी से मदरसा के अंदर बैठकर ये पुराना मादर इल्मी है, यकीन जानो अल्लाह अकबर, सादात की दुआएं और सादात की अल्लाह के कुरान के साथ वफाएं। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम जहां चले जाओ, जितने मर्जी तवीज ले आओ, जितनी मर्जी तुम जाकर टकरे मारो, आओ मैं तब्दीली तुम्हें बताऊं। आदमी दिल के कारोबार की वजह से परेशान है। जो आदमी दिल में सुख चाहता है वो रात के अंधेरों में अपनी आंखों के चिराग में आंसू रोशन कर ले। अल्लाह की कसम, जो रात के अंधेरे में अपनी आंख के आंसू के चिराग जलाएगा, अल्लाह उसके दिन के अंधेरों को रोशनी में तब्दील फरमाएगा। और इतनी बड़ी बदनसीबी की बात, हज़रत शाह साहब मजबूरी है नाराज ना होना, हक कहने से डरूंगा नहीं, चंदा तो मैंने मांगना है। हाय अल्लाह, अहले तकवा ने, अहले इल्म ने, कुरान ईमान पर ईमान रखने वाले ने, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले ने जब रात के अंधेरे में अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, अल्लाह ने दीनदारों को दिन के उजाले में उलमा दुनियादारों के दरवाजे पे ला के खड़ा कर दिया। ये मेरी एक मन गंदुम बोरी इकट्ठी करना शान थी, मिन्नतें करा के 5-5 हज़ार रुपए, अल्लाह अकबर, रात के अंधेरों में खुदा को रो के दिखाते, दिन के उजाले की बहारें अल्लाह कदमों में ला के डाल देता। और भाई बदनसीबी ये नहीं कि रमजान में हमारे बच्चे तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते, बदनसीबी ये कि फर्ज नमाज ही नहीं पढ़ते। दो बातें आपसे और करके जाऊंगा, फकीर को याद करोगे, जिंदगी का पता कोई नहीं, इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ नहीं तो वहां मुलाकात जरूर होगी। कहने लगा, ओ फकीरा, ओ जिस्म पे धब्बे वाला, तो सही कह के गया था। ओ लोगों, सारा दिन दुकान पे बैठे नहीं थकते, कारोबार करते नहीं थकते, आज जिम्मेदारी से कसम दे के कहता हूं, वादा दे के जाओ, 2 काम करने हैं आपने रोजाना 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 5 मिनट के लिए, जब आपके सारे बच्चे चेमे करते घर के अंदर हो, बीवी भी काम काज से फारिग हो, आपने 5 मिनट मुसल्ले पे बैठ के दिखाना है। दुकान पे बच्चे ने आपको बैठे देखा, दोस्तों की महफिलों में बैठे देखा, स्नोकर ताश खेलते हुए देखा, लूडो खेलते हुए देखा, कितनी बदनसीबी औलाद ने बाप को मुसल्ले पे नहीं देखा। अल्लाह अकबर, जब रोजाना मुसल्ले पे बैठोगे तो आपका बच्चा, आपकी बच्ची आपसे पूछेगी, बाबा ये क्या चीज है, इस पे यूं क्यों बैठा है? का बेटा दुकान पे बैठता हूँ, दुनिया का माल मिलता है, और यहाँ बैठता हूँ, खुदा भी मिलता है, खुदा का मुस्तफा भी मिल जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान करीम पढ़ना है या ना है, अलग मैटर है, हम पढ़े या नहीं अलग बात है, तो बदनसीबी। और आज मदरसे का तालिब इल्म, मदरसे का तालिब इल्म, मदरसे का तालिब इल्म इस किताब के, इस इल्म के हासिल करने में आराम चाहता है। अल्लाह की कसम, इस तालीम को अल्लाह ने आराम के साथ जोड़ा ही नहीं। जब तक मुशक्कत नहीं उठाएंगे ये तालीम नहीं आएगी। दूसरी वही, मेरा नबी जहां वही वहीं आई, नबी आयशा के बिस्तर पर वही, नबी बदर में वही, नबी मेरे अजीजों औहद के अंदर वही पहुंची कुरान की। लेकिन पहली वही के लिए अल्लाह को क्या खदीजा का घर पसंद ना आया, खदीजा का बिस्तर पसंद ना आया, बैतुल्लाह का सहन पसंद ना आया। अल्लाह ने पहली वही के लिए अपने नबी को गारे हिरा में बुलाया। 1450 साल गुजर जाने के बाद मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज भी उस गार के ऊपर चढ़ना कम अज कम जवान आदमी को 2 घंटे लग जाते हैं, बूढ़ा मेरे जैसा तो चढ़ नहीं सकता। कितनी मुशक्कत है, उठा कर उस गार के अंदर मेरा नबी जाया करता था। आज मेरे अजीजों, जो आज के दौर में जाना भी आसान नहीं है, पहली वही के लिए मेरे नबी को वहां बुलाया। मेरा नबी 1400 साल के बाद मदरसे का तालीम सोलते देखेगा, नरम गद्दे एसी की हवाएं देखेगा, और खाने में फ्रिजों में बकरे का गोश्त देखेगा। उसे कह देना या तो गोश्त मिलेगा या अल्लाह का कुरान मिलेगा। अगर खुदा का कुरान चाहता है तेरे सीने में आके महफूज बन जाए तो तुझे मदरसे की सूखी रोटी दाल से यारी लगानी पड़ेगी, तुझे जमीन पे लेटना पड़ेगा, तुझे अपने कपड़े, अपने बिस्तर बिछाने पड़ेंगे, कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि पहली वही के लिए कुरान खदीजा के घर में नहीं आया। कुरान सीने में उतारने के लिए अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह को गारे हिरा में बुलाया।
कहां से लाऊं? शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह कहां से लेके आओ? मर्द कलंदर दारुल उलूम देवबंद के अंदर जब ये पढ़ने के लिए आए, उस्ताद ने कह दिया, मदरसे के मोहतमिम ने कह दिया कि मियां खाना सूखी रोटी तो मिलेगी लेकिन हमारे पास बिस्तर का इंतजाम नहीं। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदरसे से फारिग होने के बाद दारुल उलूम देवबंद की गली में चले गए और आपने देखा कचरे के ढेर पर, कूड़े के ढेर के ऊपर एक कंबल फटा हुआ किसी ने, मेरे अजीजों, बुरा कंबल पुराना समझ के फेंक दिया। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो कंबल उठा के ले, इतने इतने मोटे सुराख थे, ना काबिल इस्तेमाल था। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो कंबल धोया और धोने के बाद पाक किया। 15 साल उस कंबल के अंदर ही गुजार दिए। फरमाया, ओ लोगों, गर्मी के मौसम में नीचे बिछा लिया करता और रात को ये कंबल सर्दी में ऊपर ओढ़ लिया करता। और लोगों, मैंने फटा हुआ बिस्तर तो इस्तेमाल किया, ना अल्लाह का कुरान छोड़ा, ना मोहम्मद का फरमान छोड़ा। नतीजा ये निकला, ओ लोगों, जब जिंदा था तो खानकाह पे लोगों का हुजूम था, अब दुनिया से चले गए, आसमान से कब्र के ऊपर फरिश्तों का नूर आ रहा है। कुरान वाला हो, रसूल दो। दूसरा फैसला, रोजाना अपने घर में थोड़ी देर कुरान पाक लेके बैठा करें। आज नहीं कल, पोता दोता, बेटा बेटी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, कोई तो होगा जिसे एहसास होगा कि अब्बू इतनी देर से यूं क्यों लेके बैठा हुआ है। चलो 10 में तो एक पूछेगा, अब्बू ये क्या पढ़ रहा है? कहना, बेटे जो स्कूल तो इतना बड़ा बस्ता लेके जाता है, अगर इसको पढ़े तो दुनिया मिल जाती है, दुनिया का माल मिल जाता है। अगर इसको पढ़े खुदा भी मिल जाता है, आमना का लाल भी मिल जाता है। इसको पढ़ने से दुनिया की कामयाबी मिलती है और इसको सीने से लगा के आखिरत की कामयाबी मिलती है। बदनसीबी ये नहीं कि 18 साल 20 साल 30 साल हो गए और लोगों, हमारे बच्चों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा, हाय हाय, हमारे घर के अंदर हाफिज कोई नहीं। बदनसीबी ये कि अल्लाह अकबर 20 साल गुजर गए, आम दिन तो दूर की बात, रमजान के महीने में भी हमारे बच्चों ने कुरान पाक खोल के ही नहीं देखा है। बदनसीबी ये नहीं कि हमारे बच्चे नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते, बदनसीबी ये, और लोगों, हमारे घर के अंदर जहां नमाज बिछाने वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा है। हजरत शाह साहब 5-7 दिन 8 दिन से तकरीबन एक बात दिल के अंदर इतना मुझे तंग कर रही है, इतना परेशान कर रही है, मैं रात को भी जहां चुपके से मौका मिला अल्लाह के आगे रोता हूं, या अल्लाह माफ कर देना, इस पकड़ से मुझे निकाल दे। जो मस्जिदों के अंदर कुर्सियों की लाइन है, हट्टे कट्टे 4-4 मील शुगर के लिए सैर करने जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दुकान पे 12 घंटे खड़े होकर सौदा बेचते हैं, 18 घंटे बैठे रहते हैं, और भी उन्हें दर्द नहीं होता। सजदा करने जाए तो घुटनों के अंदर दर्द हो जाता है। मैं भी मरीज हूं मेरे दोस्तों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ाता हूं, बाकी बैठ के नमाज पढ़ता हूं। अचानक एक दिन मेरे अजीजों ख्याल आया, अल्लाह, हर जलसे में जाता हूं, कोई तारीख कोई का दुक्का मिस हो जाए, अलहदा बात है, अल्लाह जलसे में जाने की तौफीक नहीं छीनी, रोटी खाने की तौफीक नहीं छीनी, या अल्लाह संजय पेशाब की तौफीक नहीं छीनी। ए अल्लाह, क्या नाराजगी हो गई कि आपने मेरे से सजदे की तौफीक छीन ली। 600 बंदा नमाज पढ़ रहा होता है और अब्दुल हन्नान ऐसे बैठा होता है। तुम्हें पता है जब सजदे के अंदर सर होता है, अल्लाह आसमान के फरिश्तों को दिखाते हैं, कहते हैं ये देखो अब मैं इसका क्या करूं, इससे और ज्यादा आजिज़ी इंकसारी क्या होगी, इससे और ज्यादा क्या इसका गिरना होगा। ए बंदो, तुम क्यों नहीं देखते? ए आसमान के फरिश्तों, बताओ मैं इसके साथ क्या करूं। ये बंदे ने सजदा नहीं किया हुआ, अपना सर मेरे कदमों में ऊपर रखा हुआ है, अब भी मैं इसको अजाब दूं, मैं अल्लाह की हया में अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कुर्सियों पर नमाज पढ़ने वालों, कम से कम रोया तो करो। ए अल्लाह, आपने सजदे की मुलाकातें क्यों छीन ली? याद रखना, मुश्तबे माल, जब तक ब्लॉक नहीं करोगे, धक्का नहीं लगाओगे, मुश्तबे माल मेरे अजीजों। आज शाह साहब बंदे कहते हैं हमारी रोजी हलाल की क्या हराम की। मैं कौन होता हूं फतवा देने वाला? मैं कहां से इलेक्ट्रिक कांटा लेके आऊं, मैं कहां से तरकड़ी वट्टा, कहां से तराजू लेके आऊं? अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, माफ कर देना, गलत तो मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा। कहने लगे, बताओ मौलवी साहब रोजी हलाल की क्या हराम की? मैंने कहा खाना कितना वक्त खाते हो? का 3 वक्त, चाहे 5 वक्त, शरबत बोतल समेत, ये तो अलग ही बात है। मैंने कहा खाना खाने के बाद अजान की आवाज आती है, नमाज पढ़ने को दिल करता है, अल्लाह के घर में जाने को दिल करता है, कुरान सामने पढ़ा हुआ पढ़ने को दिल करता है, तौबा करने को दिल करता है, आंख की हया बचाने को, सच बोलने को, सौदा पूरा देने को दिल करता है।
تو سمجھ جو اندر لقمہ گیا وہ حلال کا گیا ہوا ہے. اگر نہ افطاری سحری کرنے کے بعد روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، اور لوگوں جمعۃ الوداع تو کیا عید کی نماز پڑھنے نہیں گیا، اور لوگوں بہو بیٹی دوسرے محلے کی بیٹی کی آنکھ میں تمیز نہ ہوئی، سارا دن دکان پہ جھوٹ بولا اور سارا دن ناپ تول میں کمی کی، تو میرے بابو کپڑے تو تیرے نئے ہیں لیکن لقمہ سڑا ہوا حرام کا تیرے اندر چلا گیا. یہ مائک ہے میرے سامنے، میں بیان کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو. اگر یہاں میں ہونٹ لگاؤں گا ہلکا سا کرنٹ یہاں لگا، پورا جسم جو جوڑ کے رکھ دے گا. جب مشتبہ مال حرام لقمہ اندر جاتا ہے، اٹیک دل پہ ہوتا ہے. رب اکبر کی قسم، روح دماغ دل سینے چہرے کو یہ بے نور کر کے دیکھ کر رکھتا ہے. اور لوگوں لقمہ حلال کا رکھنا، خدا کے واسطے نہ کسی کی افطاری کا بیڑا غرق کرنا، نہ اپنی سحری کا بیڑا غرق کرنا. امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ایک دن نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام پھیرا، بڑے پریشان، افسردہ رنجیدہ ہو گئے. کس نے کہا ہے امام الاولیاء کیا ہوا؟ فرمایا آج پوری نماز کے اندر مجھے خشوع خضوع نہ ملا، پوری نماز میں سجدے میں قیام میں مجھے لذت ہی کوئی نہ آئی. حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دسترخوان پہ نظر ڈالی، جو آج سارا دل میں نے کھایا تھا، کہ مشتبہ 2 نمبر مال تو اندر نہیں چلا گیا. فرمایا نہیں الحمدللہ لقمہ حلال کا گیا. پھر میں نے اپنے کھدر کے کپڑوں پہ نظر ڈالی، اللہ کا شکر ہے کپڑا بھی میرا حلال کا تھا. پھر پگڑی کے نیچے میں نے بالوں پہ نظر ڈالی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو سر کے بالوں کو تیل لگایا وہ مشتبہ مال کا تیل لگا ہوا تھا، تیل بالوں کو لگا. اس مال مشتبہ نے جو سر کے ساتھ جا کے ٹکرایا، اس نے نماز کے سجدوں کی لذت کو ہی چھین لیا ہے. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، افطاری سحری میں دینے میں بیچنے میں خریدنے میں خیال کرنا. یہ مہینہ میرے دوستو بزرگو اللہ اکبر کمانے کا مہینہ نہیں، خدا کو پانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جنت پانے کا مہینہ ہے. روزہ برکت والا، رحمت والا، اللہ کا مہمان آ رہا ہے. سارے نبیوں کے سردار مسجد میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کا جرمٹ آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اشارہ فرمایا وہ آ گیا، صحابہ نے مڑ کے دیکھا. آپ نے پھر فرمایا وہ آ گیا، صحابہ نے مڑ کے دیکھا. پھر فرمایا وہ آ گیا، صحابہ نے مڑ کے دیکھا. یا رسول اللہ کون آ گیا؟ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا مبارک ہو رمضان آ گیا. او لوگوں، راتوں میں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو اور دن کے اجالے میں افطاری میں سحری میں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، میرے دوست بزرگوں، اپنا کھانا حلال، اپنا لباس پاکیزہ بنائے. آج یہ عورتیں جو پردے میں بیٹھی ہیں، نیا پیکیج دے کے جا رہا ہوں، نیا گفٹ دے کے جا رہا ہوں. کوشش کرنا سحری میں افطاری میں خود اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا. اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں، گھر کے اندر 10 افراد ہیں، گھر کے اندر 10 افراد ہیں، اگر آپ کی گھر والی، آپ کی بہن روزے کے لیے ان کی افطاری سحری کا انتظام کرے گی، ان کے کپڑے دھوئے گی، ان کے بستر بچھائے گی، اسے جا کے پیغام دو. عبدالحنان نے ایک پیغام دے کے گیا، کپڑے تو دھو کے دے، استری کر کے دے، افطاری سحری تو کر. یہ پہننے والا، کھانے والا جتنا درود شریف پڑھے گا، جتنا ذکر کرے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا، اعتکاف بیٹھے گا، جتنی تراویح کے سجدے کرے گا، محنتیں وہ کرتا رہے گا، بیٹھے بیٹھے ثواب تیرے کھاتے میں آتا رہے گا. لعنت فرمائی اس عورت پر جو لڑے، لعنت فرمائی اس عورت پر جو کوسے، جو اپنی اولاد کے لیے بددعا کرے. بڑوں نے لعنت فرمائی اس عورت پر. اور ایک جگہ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جو عورت نماز پڑھے، نماز کے بعد دعا کرے، پاکستان، افواج پاکستان، انتظامیہ پاکستان، عافیہ صدیقی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے اور اس دعا میں اس کے شوہر کا حصہ نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت، جو عورت نماز کے بعد شوہر کے لیے دعا نہ کرے، اللہ ایسی عورت کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. ہائے ملاقاتیں میرے عزیزوں گھروں کے اندر میاں بیوی کی ہوتی تھی، بد نصیبی بے حیائی کے جال جو بچھا ملاقاتیں عدالتوں کے اندر ہو رہی ہیں. کیوں شرم نہیں آتی؟ بیٹی کے باپ کو کیوں شرم نہیں آتی؟ کہندا کوئی نہیں، اگے وی کھاندے پہنے کھور کھا لے گی، سانو طلاق دے، ڈوب کے مر جاتا. تین دن ہو گئے سیدہ فاطمہ، آؤ تمہیں سادات کے سائے میں آل بیت کا شان سناؤں.
3 दिन हो गए सैयदा फातिमा को मकलावे गए, शादी किए, रुखसती हुई, हुजूर के दिल के अंदर दर्द हुआ, आपके सीने में बेटी के दर्द ने जोश मारा, जाके दरवाज़ा बजाया और पर्दा हटाया। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली के घर की दीवारों की मिट्टी भुर भुर के ज़मीन पे गिर रही थी, चंगेर खाली, देगड़ी खाली। आपने यूँ नहीं फरमाया चल मस्जिद नबी में फैसला कराऊंगा, 2 रोटियां थोड़ी, जिब्रील को कहूँगा तुझे रोटी दे के जाएगा। अल्लाह अकबर, अंदाज ही बदल दिया, अपने आंसुओं को टाल दिया और बेटी का चेहरा देख के फरमाया बेटी अली के घर की इतनी मौजें देख के तुझे अब्बा की गरीबी वाला बेड़ा कैसे याद आएगा? अली के घर में मौज आ रही है, तुझे बाप की गरीबी कैसे याद आएगी? अम्मा कहती ऊपर का सांस मेरा ऊपर रह गया, नीचे का सांस मेरा नीचे रह गया। मैं रोती अब्बा के आके सीने से लगी। मैंने कहा अब्बा अगर ये खुशहाली है तो गरीबी भी बता दे, गरीबी क्या हुआ करती है? फरमाया बेटी तेरे किरदार को, तेरी जिंदगी की सांस को, तेरे हर लम्हे को, तेरी सूरत को, तेरी सीरत को कयामत तक आने वाली बेटियों के लिए मैंने मिसाल बनाना है। फातिमा इस घर के अंदर सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजार। जो बच्ची अपने बाप के गले पे छुरे फेरेगी कि शादी वाली रात, शादी वाले दिन मुझे 1 लाख का जोड़ा चाहिए, बेटा कहेगा शादी वाले दिन बारात का मुझे 1 लाख का। मैं मेरी बेटी उम्मत को कह देना, उम्मत के उलमा से कह देना कि तेरा शादी वाला लिबास दिखा और दुनिया को बता दे 1 लाख रुपए का गोटे का जोड़ा पहनने वाली मोहम्मद की बेटी 17 पेमद वाली चादर पहन के गई थी। दौड़ी दौड़ी आई और आकर अपने अब्बा से लिपट गई। हाय अब्बा आज तो मरती मरती बची, अब्बा आज तो परेशान हो गई। आपने फरमाया बेटी क्या हुआ? कहा आज मेरे से अली नाराज हो गए थे अब्बू जी, फिर मैं मना लिया। हुजूर ने यूं देखा बेटी मना लिया, कहा आज तो बड़ी मुश्किल से माने, कई दरवाजे पर जाके अली मान जा मान जा, बेटी बस ये बता माना कि नहीं माना? कहा अब्बा अली मान गया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटी अली नाराज होता, इसी नाराजगी में तू मेरे घर आ जाती। ए बेटी तुझे 3 वक्त 2 वक्त तो रोटी मिलती, खुदा न करे अगर तेरा इंतकाल हो जाता, ए बेटी मैं तुझे अपनी चादर का कफन देता। अली की नाराजगी की वजह से मैं मोहम्मद तेरा जनाजा ना पढ़ाता। ये मियां बीवी का म्यार बतलाया। 4 बेटियां, आखिरी बात तो मैं बात करूंगा, बेटी कौन होती है? बोझ होती है? नहीं नहीं, किसी के यहाँ बेटा पैदा हो आसमान से फरिश्ता आता है और लोगों कहते हैं कहां इसका बाप? आज के बाद चौको चौबंद हो जा, आज के बाद होशमंद हो जा, खबरदार आज के बाद तेरे बेटे की सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ने तेरे ऊपर डाल दी। जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है आसमान से फरिश्ता आता है, कहता है कहाँ है तेरा बाप? और औरत से कहता है कहाँ है तेरा घर वाला? और माँ और बेटी की तरफ नजर के कहता है तू भी कमजोर, तू भी कमजोर, कहाँ इसका बाप? दिलासा देने के लिए आया हूँ, जाओ इसके बाप को बुलाओ और कह दो मैं खुद नहीं आया, मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है। और मेरा अल्लाह कह रहा है परेशान न होना बेटी, तूने नहीं मांगी बेटे मैंने तुझे दी है, मैं से रहमत नहीं बनाऊंगा, रहमत नहीं बनाऊंगा। आज के बाद बिल्कुल परेशान ना होना, तेरी बच्ची की सारी जिम्मेदारियों का जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया। अल्लाह अहमदपुर साल वालों, कुर्बा जवाहर वालों, आखिरी बात करके जानो, कोशिश करना अपनी जिंदगी में अपनी धी को अपनी जमीन में, अपने मकान में, अपने जायदाद में, अपने बैंक बैलेंस में उतना हिस्सा देना जितना कुरान ने कहा, ज्यादा देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मेरे अजीजों मेरे प्यारों, अगर बेटी महरूम रही और बेटे हिस्सा ले गए, कोशिश करना तेरी जनाजे वाली चरपाई पे बेटी ना खड़ी होकर रोए। अगर तेरी जनाजे वाली चरपाई पे बेटी खड़ी होकर रोई और उसका एक आंसू निकल के तेरे कफन के अंदर छुप गया, रब्बे अकबर की कसम है ओ लोगों, दुनिया को माल बचाना आसान हो जाएगा और तुझे 1 घंटे के लिए कफन बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ बाप की कोशिश करना, माँ बाप का अदब एहतराम करना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। आखिरी बात, वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ज़्यादा तफसील मैं नहीं जानता, मैंने उलमाए कराम से सुना, अल्लाह ने इन 2 आयतों में 4 बातों का हुक्म फरमाया और सारी बातों के साथ 4 बातें फरमाया। खबरदार अगर माँ बाप हैं, कोशिश करना माँ बाप को कभी घूर के ना देखना, माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के नहीं देना, माँ बाप की बात का जवाब सीना तान के नहीं देना और माँ बाप की बात का जवाब गुस्से से नहीं देना। कंधे मटकाएगा, सीना तानेगा, गुस्से से बात करेगा या घूर के देखेगा, मैं बेनियाज़ हूं, अगर मुझे गुस्सा आ गया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम जिल्लत के ऐसे गले में फेंकूंगा कि क़यामत की सुबह तक तुझे उठाने वाला कोई नहीं आएगा।
तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी। इनकी खिदमत करेगा जन्नत में मुस्कुराता जाएगा, और अगर इनको रुलाएगा तो रोता हुआ जहन्नम के अंदर जाएगा। बस मेरे अजीजों, ये फिक्र आपको मुझे नसीब हो जाए कि हमने दुनिया में रहकर अल्लाह को राजी करके जाना है। आमनुत्तकुल्लाह, ओ लोगो जो ईमान ले अल्लाह से डरो, हक्क तुकाती, जैसा डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार खबरदार, जब तक मुझे राजी ना कर लो, जब तक मेरे से सुलह ना करो, मेरे पास ना आना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तक फरमा बरदार ना हो जो मेरे पास ना आना। छोड़ दो सारे धंधे, कारोबार बचाने की, फसलें बचाने की भी कर बाद में करो, पहले रूठे रब को नाराज करो। रब अकबर की कसम है, औहदों से रब राजी नहीं होता, और मेरे प्यारों हुकूमतों से रब राजी नहीं होता। अगर खुदा को मनाना हो, हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, एक आंसू यहाँ से एक आंसू निकाल कर अपनी आंख के हाले के अंदर रखना तुम्हारा काम है। गुनाह दूर करके रहमत वाली चादर के अंदर छुपा लेना अल्लाह का काम है। तूबू इलल्लाह, सारा मजमा 3 मरतबा कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, जोर से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा।